everyone, how are you? Hope you all are fine. So I am here with you with the new video and the continue video for chapter 4, that is carbon and its compound. And this is the last part of this chapter and very important part because we are using the things that is mentioned in the video in our day-to-day life, that is soaps and detergent. So it's highly related to this chapter. So let's begin today's video with soaps and detergent. So what are basically soaps and detergent? So it's the molecule of sodium or potassium salt of long chain of carboxylic acid. Okay, so it's a long chain of carboxylic acid in which one end is of potassium or it can be of sodium. Okay, so here there are two ends in a molecule. One end is of sodium or potassium. Okay, and it will be also having some of the anion part in it. This part will be having anion part in it depending on soap and detergent. Okay, but there will be a presence of sodium and potassium, that's sure. And the part that you are seeing in the shape of a triangle or a long tail, that is the hydrocarbon part, or you can say it's an alkyl part. Okay, and it is represented as R. So here you can see that soap is given in the picture. So this is the molecule of soap, as well as you can consider this as a molecule for any of the detergent that we are using in washing machine or as a washing powder. Okay, so now let's try to understand structure of soap molecule. So as I told you, soap molecule has two parts. One part is named as hydrophilic part. Now what is the meaning of hydrophilic, students? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब होता है लवर, मतलब कि ये जो पार्ट है, ये जो एंड है वो पानी के साथ रहेगा. एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, मीन्स कि ये है वो वाटर से फियर वाला पार्ट है, मतलब कि ये पानी से रिपेल करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो पोलारिटी वाला जो पार्ट होता है स्टूडेंट्स, वो आपका डर्ट या स्टेन के साथ है एक्शन लेने में काम आएगा, या फिर जो लंबा सा पार्ट है वो पानी के साथ रहेगा. मतलब ये हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है वो पूरा पानी के साथ सोल्यूबल होता है और ये जो आपका पोलर पार्ट है वो डर्ट के ऊपर एक्ट होता है. ओके, तो ये पूरा फॉर्मूला क्या होगा सोप का? तो ये है सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला, सोडियम स्टीरेट. तो सोप का फॉर्मूला होता है ये C17H35 COO-Na+. Now if we move further, we will have a very important question that can be asked in our board exam, that is cleansing action of soap. So in order to understand cleansing action of soap, it's necessary to know about micelle formation. So micelle spell is MICELLE. Okay, so a soap molecule has two parts, one is water loving and other is water hating. So here same things are given to you all. So students, this part will be with water and this part will be with dirt or stain. Okay, now soap molecules form cluster. They are known as micelles around grease or dust particle. सो आप देख सकते होंगे कि ये अगर आप ग्रीस कंसीडर करते हो तो सोप मॉलिक्यूल का पूरा क्लस्टर बना हुआ है. क्लस्टर मीन्स कलेक्शन ऑफ मेनी थिंग्स. सो यू कैन सी ओवर हियर दैट क्लस्टर इज फॉर्म. ओके, एंड दिस क्लस्टर इज एक्टिंग ऑन ए डर्ट. ये डर्ट है, डर्ट के ऊपर पूरा क्लस्टर जा रहा है और ये जो है वो पानी के साथ रहेगा. ये पोर्शन है वो किसके साथ रहेगा? पानी के साथ. द हाइड्रोफोबिक पार्ट पॉइंट्स टुवर्ड्स द डर्ट एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एंड हाइड्रोफिलिक एंड विल एक्ट टुवर्ड्स वाटर. This forms an emulsion in water. The soap micelle thus helps in dissolving the dirt. इसीलिए क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आप एक टब कंसिडर करते हैं, उसमें अगर ये पानी है और अगर ये डिटर्जेंट है स्टूडेंट्स, ओके, और मैंने यहाँ पे ऐसा एक क्लॉथ लिया है जिसके ऊपर ये स्टेन है स्टूडेंट्स. ओके, तो जैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पाओगे कि
ये डिटर्जेंट इसके ऊपर एक्ट होने लगेंगे तो जो भी डर्ट होगा स्टूडेंट्स वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ओके, डर्ट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। सो दिस फॉर्म एन इमल्सन इन वाटर, द सोप मिसल दस फॉर्म्स इज डिजोल्विंग द डर्ट इन वाटर, डिजोल्व कर देता है डर्ट को पानी के नीचे। और इमल्सन क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएगा जिसमें आपको दो लेयर दिखेंगे, एक होगा पानी का, दूसरा होगा डर्ट का। तो इसी तरीके से पूरा जो क्लॉथ है उसमें क्लिनजिंग एक्शन होकर ये क्लॉथ में से डर्ट है वो चले जाएंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द एक्चुअल डायग्राम। सो आप देख सकोगे कि ये वाटर का लेयर है और ये जो है वो कपड़े के ऊपर का स्टेन है। ओके, तो क्या हुआ, पहले ये सभी सोप के मॉलिक्यूल्स हैं। किसके मॉलिक्यूल्स है स्टूडेंट्स? ये सोप के मॉलिक्यूल्स हैं। ये सभी पहले रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं। सेकंड डायग्राम में आप देख पाओगे थोड़े थोड़े हैं वो डर्ट के ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे ये सभी है वो अटैच हो जाएंगे। ठीक है, किसके साथ? ग्रीस या डर्ट के साथ। फिर क्या करेंगे वो डर्ट के ऊपर क्लस्टर फॉर्मेशन की कोशिश करेंगे और लास्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिशेल फॉर्म हो जाएगा। मिशेल फॉर्म होने के बाद क्या होगा, ये जो डर्ट है उसके टुकड़े हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और ये जो है वो पूरे सॉल्यूशन को बना देगा कोलोइडल सॉल्यूशन। सो आई होप आपको पूरा क्लिनजिंग एक्शन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम आगे जाएंगे हार्ड वाटर। तो स्टूडेंट्स हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दो वाटर होते हैं। ठीक है, हार्ड वाटर इसे बोला जाता है जिसके पानी में आपको कैल्शियम या मैग्नीशियम कार्बोनेट या फिर आपको मैग्नीशियम आयंस या फिर कैल्शियम आयंस मिले, ये वाले वाटर को हार्ड वाटर बोला जाता है। ओके, सो व्हाइल बाथिंग फोम इज फॉर्म विद डिफिकल्टी एन इनसॉल्युबल स्कम इज फॉर्म एंड इट रिमेन्स आफ्टर वॉशिंग विथ हार्ड वाटर। तो स्टूडेंट्स जब भी सोप से आप कोई क्लोथ्स है उसको वॉश करते हैं but along with hard water then it will form scum। क्यों स्कम फॉर्म होता है स्टूडेंट? सोप का फॉर्मूला हमने जान लिया है, क्या होता है? C17H35COO अगर वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट किया तो वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? तो देखिए ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, कैल्शियम का आयन प्लस में होता है, मतलब कि वो होता है कैटायन। ठीक है, तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स? तो इसमें ऐसा होगा स्टूडेंट्स कि C17H35COO माइनस Ca प्लस मतलब Ca2 प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा, प्लस इसके साथ जो सोडियम था वो अलग हो जाएगा और यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे एज कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 रखा है, इसको बैलेंस करने में मैंने यहाँ पे 2 रखा है। एंड एट लास्ट सोडियम का जो एटम है वो 2 आ गया, मतलब ये इक्वेशन भी सही है। इफ़ यू वांट टू राइट दिस इक्वेशन इट्स करेक्ट, इफ़ यू वांट टू राइट दिस इक्वेशन इट्स करेक्ट। तो स्टूडेंट्स इसमें कम क्या हुआ? तो मैंने क्या बोला, अगर पानी में किसके आयन्स है? मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन्स है तो उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। तो ये पानी के अंदर के आयन्स दिखाए हैं। ठीक है, मतलब ये हार्ड वाटर के साथ जैसे ही सोप रिएक्ट करेगा ड्यूरिंग वॉशिंग तो ये क्या फॉर्म करेगा? स्कम, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है आप सबको। ओके, नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? तो इसका नेम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, सोडियम इसका नाम होता है स्टूडेंट्स, ये जो C17H35COO माइनस का स्टीरेट, और इसका जो है उसका नाम होगा सेम वे कैल्शियम स्टीरेट। बहुत ही इजी नेमिंग है स्टूडेंट्स, आपको कैटायन का नाम पहले लिखना है और उसके बाद एनायन मतलब स्टीरेट पार्ट लिख देना है। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी वही है, मैग्नीशियम स्टीरेट है, ये मैग्नीशियम स्टीरेट है जो वाइट पर्सिपिटेट फॉर्म होंगे, ये क्या है? मैग्नीशियम स्टीरेट है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप सबको समझ में आ गया होगा। दैट्स स्कम इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अब देखिए, this scum remains after washing with hard water. This is caused by reaction with calcium and magnesium salt, but it is insoluble substance। insoluble का मतलब है पानी के साथ मिलेगा नहीं, वो अपना लेयर खुद से बनाएगा और क्लिनजिंग एक्शन अच्छे से देगा ही नहीं।
तो आई होप आप सबको स्कम फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। जब सोडियम स्टीरेट है वो कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो स्कम फॉर्म करेगा। स्कम के साथ आप क्लिनजिंग एक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। आगे जाते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज डिटर्जेंट। सो डिटर्जेंट आर जनरली एमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे एमोनियम भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, सल्फोनेट फॉर्म भी हो सकता है। द चार्ज्ड एंड ऑफ दिस कंपाउंड डू नॉट फॉर्म प्रेसिपिटेट। तो डिटर्जेंट और सोप में फ़र्क क्या है कि डिटर्जेंट है वो स्कम फॉर्म नहीं करता है, डो नॉट फॉर्म स्कम। तो स्कम फॉर्म नहीं करेगा उसका मतलब ये प्रेसिपिटेट फॉर्म ही नहीं करेंगे, राइट। सो दे आर मोर इफेक्टिव इन हार्ड वाटर एंड दैट्स व्हाई दे आर यूजुअली यूज्ड टू मेक शैम्पू एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स एज वेल एज। आप देखते होंगे जो वॉशिंग मशीन का पाउडर है वो डिटर्जेंट बोला जाता है, सेम वे शैम्पू के लिए भी डिटर्जेंट का यूज़ होता है क्योंकि वो हार्ड और सॉफ्ट वाटर दोनों में काम कर सकता है क्योंकि ये स्कम फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। सल्फोनेट एटम्स है वो मैग्नीशियम के साथ और कैल्शियम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, यही कारण है कि वो स्कम भी फॉर्म नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई डिटर्जेंट इज मोर इफेक्टिव देन सोप फॉर क्लींजिंग एक्शन। होप ये पूरा वीडियो और चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।